interstitial lung disease with non-caseating granuloma and hilar lymph nodes. Interstitial lung disease but non-caseating granuloma. It means if there is a word of caseating granuloma, so you will take that this is tuberculosis. But the word is non-caseating. It means non-necrotizing granuloma. There is no necrosis. The answer will be sarcoidosis. There is a difference. Statement आपकी सेम रहेगी. Interstitial lung disease with caseating granuloma अगर आ जाए या necrotizing granuloma आ जाए तो this is tuberculosis. But if the word is non-necrotizing or non-caseating granuloma, then the answer is sarcoidosis. T cell receptor complex bind with MHC. As I told previously that MHC class 1 proteins and MHC class 2 proteins. One is always bind with CD 8, yes. And MHC class 2 is always bind with CD 4, CD4. Curling ulcers occur because of burns. This is important MCQ regarding the ulcers. सेपरेट टॉपिक में हम अल्सर के सारे देखेंगे भी कि अल्सर की टाइप कौन सी और लियंस कौन से हैं. 50-year-old hypertensive patient, severe chest pain radiating to back, died. Autopsy finding medial necrosis of aorta. It means there is a history of hypertension, middle age mention है यहाँ पे, और उसने कहा है कि चेस्ट पेन है रेडिएटिंग टू बैक. तो आपको पता है कि बैक पे इंटरस्कैपुलर रीजन के अंदर जब पेन होती है तो दैट इज पेन ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, और एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर देयर इज मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा. अगर वो आपको हाइपरटेंसिव ना पेशेंट बताता और वो बताता कि पेन है एब्डोमेन में एंड दैट इज रेडिएटिंग टू बैक, देन इट विल बी पैंक्राटाइटिस, एक्यूट पैंक्राटाइटिस. बट चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक एंड इंटरस्कैपुलर रीजन, तो ये आपके पास आती है एओर्टिक डायसेक्शन की पेन है. 6-year-old patient with arthritis, with rhinitis, edema, urticaria on external surfaces. Rhinitis mean there is allergy. Urticaria again allergy की type है, skin allergy हो रही है, edema हो रहा है, और इसमें आपने बताना है हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी टाइप की है, तो दैट इज टाइप 1. एलर्जिक रिस्पॉन्स में जब भी आप बात करेंगे तो आपने उसके अंदर क्या बताना है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बतानी है. ये जब आगे हम हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि 1 to 4 के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं. Most common cause of cellular injury in our country is ischemia. This is again repeated MCQ. 60-year-old male develops pain in calf muscle after walking 100 yards. Pain is due to. What is the diagnosis of this scenario? Deep vein thrombosis. वो तो कॉज हो गया ना, डीवीटी. एक्चुअल जब पेशेंट आपको ये हिस्ट्री बताता है मेडिसिन के वार्ड में, तो आप क्या बताते हैं, इसको क्या टर्मिनोलॉजी बताते हैं? दिस इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. ठीक है, ये आप मेडिसिन में एक वर्ड पढ़ते थे, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. क्या होता है कि डीवीटी के अंदर पॉप्लीटियल वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जब वॉक करता है 100 मीटर तक तो उसके काल्फ मसल टेंडर हो जाते हैं, उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है. So this is intermittent claudication and that is due to popliteal vein DVT. अब उसने यहाँ पे आपको cause पूछा है. Pain is due to. It means here the examiner is want to ask the cause. The cause is DVT, but the diagnosis is ID, intermittent claudication. Newly married female came with pain in the right iliac fossa. TLC count 12,000 है. She has fever, vomiting. LMP 3 weeks back थी. What is diagnosis? Right iliac fossa pain है, TLC count raised है, it means there is infection, acute infection. Fever है, vomiting है. What is the diagnosis? This is acute appendicitis. Pain in the right iliac fossa, it is acute appendicitis. If there is a history of UTI, अगर वो कहते हैं कि उसको बर्निंग मिक्चुरेशन है, कुछ टाइम पहले वो जो है वो विजिट के लिए गए थे कपल, और उसके बाद उसको आके बर्निंग मिक्चुरेशन इचिंग हो रही, देन इट विल द डायग्नोसिस विल बी चेंज.
so then it will be acute cystitis or honeymoon cystitis. But in this scenario, यहाँ पे उसने इन्फेक्शन को सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, एंड फीवर, वॉमिटिंग, टीएलसी काउंट रेज, डायटेलिक फोसा पेन, दैट इज पेट हिस्ट्री फॉर acute appendicitis. ट्यूमर विद ऑल 3 जर्म लेयर्स, ऑल जर्म लेयर्स का मतलब है उसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों आएगी. दिस इज टेराटोमा, एंड टेराटोमा में बी मेच्योर एंड इमेच्योर. About metaplasia, metaplasia, as we know, the definition of metaplasia is one epithelial lining is changed by an other normal epithelial lining. For example, Barrett's esophagus, as we told in the previous points. Betel nut chewing, this is the pet scenario for submucosal oral fibrosis. SOF उसको बोलते हैं. This is submucosal oral fibrosis. इसमें क्या होता है कि बीटल नट च्यूइंग हो रही होती है. ये जो पान और छालिया लोग खाते हैं उसके अंदर सबम्यूकोजल ओरल फाइब्रोसिस होती है. ठीक है. दिस इज अगेन द प्री मेलिग्नेंट लियन ऑफ द ओरल कैविटी एंड दिस इज बिनाइन लियन. ब्रेस्ट एट्रोफी इज ड्यू टू, previously we have discussed this point that estrogen and progesterone imbalance हो जाता है. यंग फीमेल में भी हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल में नेचुरली होता है. कैन नॉट रीजनरेट, कौन से टिश्यूज हैं जो रीजनरेट नहीं करते? तो इसके अंदर आपके पास आता है लेंस या नर्व. लेंस इज इट मींस रेटिना. रेटिना अगर डैमेज हो जाए तो रेटिना का रिपेयर मुश्किल होता है, वो रीजनरेट नहीं करता. सिमिलर इज द केस विद लेंस. लेंस आपको रिप्लेस कराना पड़ता है, वो खुद से रीजनरेट नहीं होता. नर्व, नर्व अगर डैमेज होगी तो नर्व रीजनरेट नहीं होती. ठीक है. अगर आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन रीजनरेट, आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? liver, लिवर, यस, लिवर कैन रीजनरेट. और इसके अंदर कैन नॉट रीजनरेट में आपने किडनी भी याद रखने हैं. किडनी का भी ट्रांसप्लांट होता है, वो भी रीजनरेट नहीं करते. ठीक है. Child with having Meckel's diverticulum is having bleeding per rectum. It is due to Meckel's diverticulum के अंदर आपको पता है कि रूल ऑफ 2 आप याद रखते हैं कि 2 सेंटीमीटर ये प्रॉक्सिमल होता है टू इलियोसिकल जंक्शन. बच्चों के अंदर होता है, ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही होती है बच्चों में. तो इसके अंदर उसने कॉज पूछा अगेन, दैट इज एक्टोपिक गैस्ट्राइटिस. बच्चों के अंदर अगर हो जाए तो टिश्यू जो है वो किसी और जगह पे ग्रो कर जाता है, जिसको एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू या एक्टोपिक गैस्ट्रिक जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक्टोपिक गैस्ट्रिक ग्रोथ आपको मिलती है. ठीक है. Then the child with sore throat after 3 weeks develop edema, hematuria. Cause would be sore throat हो गया 3 weeks के बाद उसको एडिमा डेवलप हो गया, हिमाचूरिया डेवलप हो गया. हिमाचूरिया मीन इट इज रिलेटेड टू किडनी. तो दिस इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. हमेशा याद रखना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर पहले आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री दी होगी. फॉर एग्जांपल सोर थ्रोट है, फीवर है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन दिया होगा, तो दिस इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है. और इसमें आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं. बिलो द एपिथेलियम आपको डिफरेंट जो है ना वो कास्ट मिलती हैं जब आप ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देखते हैं. काउंसलमैन बॉडीज अपोप्टोसिस में होती हैं. डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज स्पूटम एसिड फास्ट बेसिलाई. आपने टीबी के लिए एसिड फास्ट बेसिलाई कराने होते हैं. स्पूटम कल्चर आप बेसिकली कराते हैं, दैट इज डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर टीबी. चेस्ट एक्सरे अगर आप कराते हैं तो उसमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस आपको मिलती है, वो आपको डिफरेंट डिजीज में मिल सकती है. फॉर एग्जांपल हमने भी इसका डिफरेंशियल एक पढ़ा था, सार्काइडोसिस, उसमें भी मिल सकती है. कोई मेटास्टेटिक डिजीज है उसमें भी मिल सकती है. तो मल्टीपल इसके कॉजेज है. डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर ओवेरियन कार्सिनोमा, दैट इज CA125. वी हैव अ लिस्ट ऑफ these tumor markers और we will discuss it in the chapter of neoplasia. Diphtheria vaccination, vaccine reaction हो गया है. The type is type 3 hypersensitivity reaction. Remember कि जब भी वैक्सीन की बात होगी ना और वैक्सीन की इनोकुलेशन के बाद कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो टाइप 3 होता है. ठीक है.
इसकी डिटेल हम जो है ना वो इम्यूनो वाले चैप्टर में और जब एलर्जी के रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रख लें कि वैक्सीन है, डिphtheria की है, रिएक्शन किस टाइप में आएगा, दैट इज टाइप 3। एडीमा ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, फीचर क्या मिलेगा, मैंने यह कल भी बताया था आपको कि एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमेशा याद रखना है द फ्लूइड इज एक्सुडेटिव एंड एडीमा इज ड्यू टू more proteins, protein level will be more than 3 gram. Important factor affecting the collagen synthesis during wound healing, that is vitamin C. vitamin C ने आपकी जो कोलेजन है उसकी सिंथेसिस करनी होती है और उसको कन्वर्ट कराना होता है टाइप 3 से टाइप 1 के अंदर। सो विटामिन सी इज essential for the proper tensile strength and wound healing. And if there is a word that which factor is not important or not affecting the wound healing, so then it is vitamin D. Feature not associated with irreversible cell injury, that is myelin figures. myelin figures आपको दोनों में मिल सकते हैं, reversible और irreversible, both consist of myelin figures. Fisherman is presented with gingival bleeding, ecchymosis. It is suffering from which deficiency? Remember, gingival bleeding, that is scurvy, और ecchymosis, they are vitamin C deficiency. vitamin C deficiency के अंदर bleeding भी होगी और ecchymosis भी होती है. ICAM, VCAM, I told earlier that they are adherent molecules. They are specific for neutrophils and they bind to the integrins. ICAM and VCAM are for the leukocyte adhesion. Least chances of renal stones are associated with hyperlipidemia. Renal stones आपके किस किस कंडीशन के अंदर बन सकते हैं? मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या होती हैं? हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया के अंदर कम है कि स्टोन बने। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस अगेन इन ब्रेन. मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड इंटेंशन इज कॉन्ट्रैक्शन या ग्रैनुलेशन टिश्यू. बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. either it is wound contraction or either there is a word of granulation tissue. तो दोनों आपके करेक्ट हैं लेकिन wound contraction is more accurate. Mesothelioma is associated with asbestos. Mesothelioma means that the involvement of mesothelial cell and mesothelial lining and that is involved in asbestosis. But smoking की जब बात होगी तो smoking is associated with bronchiogenic carcinoma that is directly affecting the bronchioles. Type of necrosis is omentum. Omentum contain adipocyte fat, so fat necrosis. Most common cause of pre-malignant change in the mouth in adult. अब देखिए यहाँ पे वर्ड है प्री मेलिग्नेंट चेंज का और उसने कॉज पूछा हुआ है. इट इज नॉट द कंडीशन, रिमेंबर. कॉज पूछा हुआ है प्री मेलिग्नेंट चेंज का, तो दैट इज लाइकेंस प्लानस, ठीक है. that is lichens planus and that is pre-malignant change and most common cause का जब वर्ड है तो that is lichen planus. और अगर यहाँ पे आए मोस्ट कॉमन कंडीशन या मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन तो आप क्या आंसर करेंगे? सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस. सबम्यूकोजल oral fibrosis if there is if there is history of beetle or nut chewing. Most important response in shock as a whole is CNS ischemic response. CNS ischemic response will be more predominant in shock. Not a part of natural immunity, that is plasminogen. प्लाज्मिनोजेन जो है ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे पूरा जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि आपका प्लाज्मिनोजेन का क्या रोल आता है. That is not the part of natural immunity. Open wound healing includes, again there is contraction of myofibroblast or contraction of wound or contraction of collagen bands. तो ये आपने बताना कि collection of myofibroblast आ सकती है. Then the next point is organ having the least chances of infarction, that is liver, because liver has the ability to regenerate.
Tuberculosis can show both caseous and coagulative necrosis depend upon the scenario. टीबी में आपने देखना है ग्रैनुलोमा की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग. If there is the word of caseous necrosis, लंग की बात की हुई है, टीबी की हिस्ट्री है, तो आपके पास केशियस नेक्रोसिस आएगी. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की बात है अगर वहां पे सॉलिड ऑर्गन की बात की हुई है. ठीक है. इन क्रॉनिक हिमोलिसिस पिगमेंटेड स्टोन्स, pigment stored in tissues. ट्यूबरक्लोसिस के में आपने देखना है कि सिनेरियो के अंदर उसने फीचर्स क्या दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने टिक करना है केशियस है या कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है. इन क्रॉनिक हिमोलिसिस पिगमेंट स्टोर्ड इन द टिश्यू आर, हिमोलिसिस के अंदर जो टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेशन होती है दैट इज हीमोसिड्रिन. हीमोसिड्रिन क्या करता है कि जो हीमोसिड्रिन है दैट इज डिपॉजिटेड इन हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस. टिश्यूज के अंदर आपको पता है मैंने बताया था कि टिश्यूज के अंदर तब प्रीडोमिनेंट सेल आर मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस के अंदर हिमोलिसिस जब होती है तो हीमोसिड्रिन वहां पे क्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू इन अ गैस्ट्रिक मिकोजा इज टर्म्ड एज कोरिस्टोमा. पहले भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल साइट इट कैन ग्रो. फॉर एग्जांपल अदर साइट इज ब्रेन टिश्यू इन नेजल कैविटी. Patient came with abdominal pain, amylase high, diagnosed with pancreatitis. Again, omentum show which type of mechanism, that is fat necrosis. Pancreatitis में भी मैंने बताया था fat necrosis होगी, और if there is a word of omentum, then the again answer will be fat necrosis. Patient came with testicular mass, diagnosed as yolk sac tumor. Follow-up marker for this is alpha fetoprotein. For yolk sac tumor or testicular tumors, the prognostic marker is alpha fetoprotein. What is other type of tumor in which alpha fetoprotein is again prognostic? Yes. HC. HCC, yes, hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma also have increased level of alpha fetoproteins. Patient with cervical lymphadenopathy, positive acid fast bacilli. Look for TB on microscopy. TB पे आपको क्या मिलेगा? Caseous necrosis मिलेगी. It means necrotizing granuloma मिलेगा आपको. ठीक है. Sarcoma is differentiated from carcinoma. Number one is tissue of origin. सार्कोमा में टिश्यू आपका मीजनथाइमल होता है. कार्सिनोमा के अंदर आपके पास टिश्यू किसी भी साइड से आ सकता है, एपिथेलियल ओरिजिन का भी हो सकता है. ठीक है. तो टिश्यू पे डिपेंड करेगा ओरिजिन साइड पे. एंड नंबर टू इज एग्रेसिवनेस. मोस्टली द सार्कोमास आर मोर एग्रेसिव इफ दे आर malignant. Irreversible cell injury start with release of lysosomal enzymes, and irreversible cell injury leads to मेम्ब्रेन डैमेज. सेल मेम्ब्रेन की डैमेज हो जाती है, ये एंजाइम्स वहां पे होल्स क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं. फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंजरी इज वेजो कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है किसी भी साइड पे जब इंजरी आती है. ठीक है. मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया बोथ आर रिवर्सिबल. रिमेंबर, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट नाउ प्रेजेंट विद इन्फ्लामेशन. Which type of inflammation is present over there? That will be acute inflammation, and the infiltrates will be neutrophils. Thromboxane A2, it is produced by platelets. Not a liver granuloma, that is silicosis. Silicosis mostly affects the lungs. True about fat embolism is it occurs 48 hours or it occurs within 2 to 3 days. As I told you the scenario of fat embolism in the previous points we have discussed today. Common cause of pulmonary embolism is common cause. Cause means that is DVT, deep vein thrombosis. Origin DVT का क्या है? That is popliteal vein, and most common source अगर पूछे तो that is femoral vein.
These three lines are very, very important, and these are repeated MCQs in almost every exam. Cause is DVT. DVT का ओरिजिन आपसे पूछें तो पॉप्लीटियल वेन है. अगर आपसे उसका सोर्स पूछा जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो सोर्स इज फेमरल. Local cause of edema is allergy or it may be infection. Shock without vasodilation, that is burns. Burns के अंदर क्या हो रहा होता है कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है, लेकिन इतना सिवियर इंजरी होती है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट होने का टाइम ही नहीं मिलता. तो इट मीन्स कि शॉक विदाउट वेसोडाइलेशन, दैट इज बर्न इंजरी. Most important distinguish feature between hypovolemic and septic shock. हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक में इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है टेम्परेचर का. ठीक है, ये आपने रफीउल्लाह के जब पॉइंट्स पढ़े हैं तो उसके अंदर शॉक का एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं. हाइपोवोलेमिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, देन एनाफाइलैक्टिक शॉक है, तो उनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं. अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो सेप्टिक का मतलब है देयर इज सेप्सिस, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल बॉडी और इट इन्वॉल्व द मल्टीपल सिस्टम. सो सेप्टिक शॉक के अंदर आपका जो हाइपोथैलेमस के अंदर आपका टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. बट इन हाइपोवोलेमिक, एज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता है अगेंस्ट द सेट पॉइंट. न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन. रिमेंबर, न्यूरोजेनिक इज रिलेटेड टू द nervous system, so there is loss of vasomotor tone. Least mediator of endotoxin shock is interleukin 6, as I told previously. Interleukin 1, 5, 6 and 8, we have discussed these 4 types of interleukins till now. Most common in all types of shock is tissue hypoxia. टिश्यू स्ट्रेस की कंडीशन में जाएगा, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ शॉक के अंदर कॉमन होता है. Cells not involved in acute inflammation, they are lymphocytes. Lymphocytes are the cells which are involved in chronic infections, chronic inflammation or chronic infections. Mast cells, they release histamine and heparin. Histamine is a mediator for inflammation, and for allergies, serotonin or 5-hydroxytryptamine. Epithelioid cells are characterized by, epithelioid cells का मतलब है कि they are organizing in such a way that they form the granuloma. So epithelioid cells are characteristic for granuloma, and that is diagnostic for tuberculosis or sarcoidosis. Mural thrombi are found in, mural thrombi का मतलब है कि wall के अंदर है, तो ये aorta of the heart को involve करते हैं. Which is not form of emboli, that is liquid. दिस इज अ वेग स्टेटमेंट. आपको कभी भी पार्ट 1 के अंदर इस तरह के वेग स्टेटमेंट के एमसीक्यूज नहीं आएंगे. देयर इज क्लियर कट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट. इन द सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन, व्हाट अकर्स फर्स्ट? सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन में नंबर 1 स्टेप मैंने आपको बताया था जब हमने सेल इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन के स्टेप्स पढ़े थे. तो फर्स्ट इज मार्जिनेशन एंड रोलिंग. So number 1 step is margination and rolling. Okay, so this is all about the repetition of points of general pathology we have completed today. अब तक जितने पॉइंट्स हमने किए हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Any point you want to discuss? No? No, मैम ma'am. आप पूछना था कि इसके जो एमसीक्यूज है वो करने हैं जो लास्ट में है, रिपीट जो पेपर है पास्ट. वो करने हैं, हाँ जी वो करने हैं. आप ऐसा किया करो कि जब आप ये कर रहे होते हो ना पॉइंट्स, तो आप कोशिश किया करें कि रोज का एक पेपर आप कर लें डिस्कस. मतलब एक पेपर आप सॉल्व कर लिया करें और क्लास के अंदर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज लग रहा है. दीज आर 14 फाइल्स.
गोल्डन फाइल्स 2014 टू 2022 तक हैं और वो 14 फाइल्स हैं आपकी, ठीक है। तो आप डेली की एक फाइल भी कर सकते हैं, तो आप एक फाइल करके उसके एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस कर लिया करें, ओके। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाई रिपीटेड जो बीसीक्यूज हैं, वो मैं आपको जब हमारे सारे टॉपिक सेंड हो जाएंगे तो वो हम उसमें डिस्कस किया करेंगे। वो ऐसे ही हम उसकी पीडीएफ जो है ना आपके साथ शेयर किया करेंगे, लेकिन पेपर वन बाय वन मैं इस तरह आपसे डिस्कस नहीं कर सकूंगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। वो आपको खुद करना पड़ेगा और आप कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज में से डिस्कस कर सकते हैं। ओके। ओके मैम। अच्छा, टास्क फॉर टुमारो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो में आपने क्या करना है, आपका कल के लिए जो है वो पेज नंबर है मेरे पास 23, 24 एंड 93 एंड 94 एज पर रोस्टर। 23 एंड 24, 93 एंड 94 4 पेजेस हैं जो इम्यूनो के हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने उनको एक दफा रीड आउट कर लेना। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Thank you. Love you. अल्लाह हाफ़िज़।